السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ لاہور سے میں ہوں غضنفر خان۔ ناظرین، اس وقت ہم محکمہ ایکسائز کے دفتر کے باہر موجود ہیں۔ محکمہ ایکسائز میں گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشنز، اس کے ساتھ ساتھ ان کی نمبر پلیٹ کا ایشو کرنا اور اس کے علاوہ سمارٹ کارڈ اور دیگر جو کام ہیں وہیکل بیسڈ وہ یہاں پر کیے جاتے ہیں۔ کیا محکمہ ایکسائز اپنے اس نظام کو بہتر کر پایا ہے یا نہیں کر پایا؟ شہریوں کو ایجنٹ کا رخ کیوں کرنا پڑتا ہے اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس محکمے میں کوئی کام پڑتا ہے تو ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنے پیسے جو ہیں وہ ایجنٹس کے تھرو جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے محکمہ ایکسائز کے حکام سے بھی اور شہریوں سے بھی، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، اس وقت ہم محکمہ ایکسائز کے دفتر کے اندر موجود ہیں اور ہم جانیں گے کہ شہریوں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک یہاں پر شہری موجود ہیں، ہم سے جانتے ہیں جی یونیورسل نمبر جو ہیں ان کے الاٹمنٹ اب کی جا رہی ہے، لیکن جو بیک پہ جو نمبر پلیٹ جو کی جاتی تھی لاہور کی، دیگر اضلاع کی، ان میں کن مشکلات کا سامنا ہے اور اب جو ہے یہ پریکٹس کس طرح جا رہی ہے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی وہ بنے گی۔ اسی طرح کمرشل گاڑیاں ان کی بھی پلیٹیں بننی ہیں جو کہ ابھی تک نہیں بنی۔ کب بنتی ہیں؟ اب ظاہر روڈوں پہ جو ٹریفک وارڈن ہے وہ تو چلان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں پلیٹ دکھائیں، اور یہاں پہ پرانی پلیٹیں نہیں مل رہی، تو ہم تو چکر لگا لگا کے تھک گئے۔ اچھا، دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک تو پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو پریکٹس ہے اس میں کوئی آپ رائے دینا چاہیں گے؟ آپ کب سے خوار ہو رہے ہیں؟ کوئی رائے ہے آپ کی اس میں کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اصل میں مارچ 2019 اس وقت کی پلیٹوں کے پیسے لے رہے ہیں لیکن بن نہیں رہی۔ ابھی جب یہ یونیورسل نمبر شروع ہوا اس میں انہوں نے پہلی ترجیحی بنیادوں پہ جو یونیورسل کی ان کی ساری پلیٹیں آلریڈی بن رہی ہیں، دے رہے ہیں۔ جو پچھلی ہیں 19 کی اور 20 کی وہ ابھی پینڈنگ ہے، وہ کب ملتی ہیں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جی بالکل، شہری کی بات سنی، 19 اور 20 کی جو نمبر پلیٹوں کا اجرا کیا گیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملی۔ شہری اس کی پیمنٹ کر چکے ہیں۔ جو یونیورسل نمبر ہیں ان پہ جو ہے وہ پلیٹیں جو ہیں اجرا کی جا رہی ہیں، لیکن ان میں بھی 20 سے 25 دن کا تاخیر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دیگر شہریوں سے بھی جانتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ نوجوان شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی، آپ بار بار یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چکر لگا رہے ہیں، کیا مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ مشکلات بس یہی ہے، سائن کا ایشو تھا تو فارم کینسل کیا تھا، کینسل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ری ایشو کروائیں، تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فلانے بندے کے پاس جائیں۔ اب ان کے پاس آئے تھے ہم، تو اب وہ اپلائی کرنا تھا اس کے لیے۔ بار بار چکر لگتے ہیں، وہ ادھر بھیج رہے ہیں، وہ اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جو ایشو ہے اس وجہ سے جو ہے پرابلمز آتی ہیں، یہ سالو ہونا چاہیے مسئلہ۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو اچھا کرے، ان کی جو ہے پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، سب کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب نئی گاڑی ٹرانسفر کروانے آئے تو کوئی ادھر بھیجتا ہے، کوئی اس ٹیبل پہ بھیجتا ہے، کوئی اس ٹیبل پہ بھیجتا ہے، کوئی زیادہ سنتا نہیں ہے۔ بہت لمبا پروسیس پہ، ایجنٹ مافیا بہت گرم ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ کوئی اقدامات کریں جس کی وجہ سے ایزی پروسیس ہو سکے۔ تو ایجنٹ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں اوپر کے کام کرنے کے، جو بندہ کہتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہی نہیں، ہم انرجسٹرڈ گاڑی چلانا شروع کر دیں۔ کوئی اس کے لیے اقدامات کرے، اس پروسیس کو آسان کرے تاکہ جو صارف ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ ایجنٹ جڑے اتنے کھڑے ہوندے نے وہ ایکسٹرا پیسے لے کے تو کام ارجنٹ کرا دیندے نے، ویسے اتنے آندے نے نہ وہ کی کہندے کام ہی نہیں کرتے جی، ایجنٹاں تھرو کام ہوندے نے جی۔ حکومت نو چاہیے کہ اتنے آ کے اتنے کام ذرا جلدی کرے، بہتری کرے۔ عام عوام آ کے پریشان ہوندی ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں میں نے بائک خریدی ہوئی ہے، تو ابھی تک جو ہے نا بائک میرے نام نہیں ہو سکی ہے۔ دفتر آؤ تو کہتے ہیں جی فلانے شو روم پہ جاؤ، سائن کرا کے لاؤ، اسٹیمپ لاؤ۔ ایجنٹ کو میں نے پیسے دیے ہیں، میرا 5 منٹ میں کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دفتر آنے سے یہ مجھے ہے کہ بار بار مجھے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے آنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ ایسا کام نہیں ہے۔ ایجنٹ جو ہے چلو انہوں نے 4-5 روپے اپنی مزدوری لی ہے، لیکن انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میرا نمبر اب لگ گیا تو میں جا رہا ہوں۔ بالکل، جیسا کہ شہریوں کی بات سنی، شہریوں کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں، نمبر پلیٹس کا اجرا جو ہے وہ نہیں ہوتا، سڑکوں پر چلان کیے جاتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو کبھی کسی کاؤنٹر پہ بھیجا جاتا ہے، کبھی کسی کاؤنٹر پہ بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان کا مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کی فائل کے نہ ہونے کے باوجود ان کی جو گاڑی ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا کہیں گے اس ایشو پہ؟ سر اصل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ میری گاڑی 2018 میں یعنی کہ چوری ہو گئی تھی، تو اس کی فائل میرے پاس دوست میں نے اس کی FIR کروا دی۔
तो अभी 1.5 महीने पहले मुझे पता चला जी मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है जवेद नामी बंदे के। तो मैंने एक्साइज के दफ्तर गया, मैंने कहा यार फाइल मेरे पास है और जो कि फाइल मेरे पास है, ये गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा जी उनके पास भी फाइल है। मैंने कहा उनके पास कैसे हो सकती है? जब उन्होंने मेरी फाइल देखी तो वो घबरा गए, तो कहने लगा जी हम आपको बुलाते हैं, बुला के दोनों का मसला सुन के और फिर वापस आपके नाम ट्रांसफ़र करते हैं। मुझे तकरीबन 2 महीने से यही चक्कर दे रहे हैं, आज आपको बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं, आज बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं, इसी तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बगैर फाइल के गाड़ी ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है? तो फिर इंसान महफूज कहाँ पर है? देखना तो ये है ना, गाड़ी की FIR भी हुई है और अगर एक आदमी के पास है गाड़ी, तो उसके पास जब गाड़ी लेने जाते हैं वो कहता है जी तो मेरे नाम है। मैंने कहा फाइल मेरे पास 2 साल पहले की FIR और 15 दिन पहले, ये गाड़ी कैसे नाम हो गई? तो बिल्कुल महकमा एक्साइज की कारकर्दगी पर इन भाई का मसला जो है वो एक सवालिया निशान है कि बगैर मतलब ओरिजिनल फाइल के वो गाड़ी भी ट्रांसफ़र हो गई और उनको कंप्लेंट जब उन्होंने की तो उनको चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक जैसा कि अनकरीब जो है वो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो है वो शहरी ज़िलो ख्वार हो रहे हैं। डुप्लिकेट फाइल्स जो हैं बनाकर जो है वो ट्रांसफर्स की जा रही हैं, नंबर प्लेट का इजरा नहीं हो रहा, स्मार्ट ई कार्ड जो है उसमें भी ताख़ीर है, लेकिन हुकाम इसको मानते नहीं हैं। लेकिन जो शहरी हैं वो आपको बता रहे हैं और मज़ीद शहरियों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। महकमा एक्साइज की कारकर्दगी तो आपसे इससे पहले आ चुकी है आपके सामने, और इससे ज़्यादा क्या बोले हम। मसला ये था कि भाई की गाड़ी है और गाड़ी जो है वो इनके नाम है और दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो गई। ओरिजिनल फाइल इनके पास है और चाबी भी इनके पास है, ओरिजिनल बुक इनके पास है, हर चीज़ इनके पास है। अब ये बताएं कि इसके बाद कैसे ट्रांसफ़र हो गई वो गाड़ी? गवर्नमेंट क्या काम करते हैं और मतलब बड़ी एज में आप चक्कर लगा रहे हैं? सर मैंने बहुत खिदमत की है इस मुल्क की। मैं 22 साल सऊदी अरब में रहा हूँ और मैंने अपना सारा पैसा जो है ना वो बैंक के थ्रू भेजा है, नट के हुंडी, इन माई होल लाइफ। और अब ये है कि ये ऐसे काम के लिए हमें यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। इससे अंदाज़ा करें कि हमने, अगर हम कोई गलत काम करते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था हमारे लिए, बजाय कि ये कि जो अच्छा हमने सही काम किया तो उसका नतीजा हम ये भुगत रहे हैं। महंगाई देख ले कहाँ है और ये कारकर्दगी आपके सामने है। बुजुर्ग शहरी जो है उनका कहना है कि वो ज़िलो ख्वार हो चुके हैं, उनका काम नहीं हो रहा, उनकी फाइल भी जो है वो डुप्लीकेट पर जो है उस पर गाड़ी को जो है ट्रांसफ़र किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। जी हमारे साथ एक एजेंट जो है फैज़ान नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये काम किस तरह करवाते हैं। मतलब कि कोई शहरी आता है तो उसका काम नहीं होता, आप जो है वो बड़ी जल्दी काम करवा देते हैं, क्या मसला क्या है, कैसे ये आप करते हैं? देखें हमारा भी यहाँ पे रोजगार लगा हुआ है, हमारी कुछ चलो जो जान पहचान है अंदर कि हम आगे से 2000 लेके अंदर काम करवा देते हैं उनसे, क्योंकि हमारी भी चलो जान पहचान है, अगले का भी काम हो जाता है कि हमारा भी यहाँ पे रोजगार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से काम के मुताबिक आप उससे चार्ज करते हैं। मतलब कि कोई अगर ट्रांसफ़र करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, नंबर प्लेट लेनी है, ई कार्ड लेना है, तो वो काम के मुताबिक है या एक फिक्स रेट है आपका? नहीं, ये काम के मुताबिक ही होगा, फिक्स रेट नहीं है यहाँ। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? कि हम 2000 लेके अंदर से जो काम होगा उनका यही है कि जल्दी करा देते हैं, जो काम नहीं होता वो हम जल्दी उनका करा देते हैं प्रॉपर्ली काम। ये सब प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आए थे हम यही नंबर लगवाने के लिए, ठीक है। इधर आए हम, फाइल पुल किया, अंदर से वो चलान लिया, पुल करके दे दिया ऑफिस में, तो उन्होंने पेमेंट बना के दे दी, पेमेंट करा दी। बाकी उन्होंने कहा 1 माह बाद आना, 1 माह बाद उन्होंने आपको कार्ड मिल जाएगा, इसका फाइल मुकम्मल होकर आ जाएगी, उसके बाद नंबर भी साथ ही मिल जाएगा, प्लेटें नंबर वगैरह। नाज़रीन एक छोटी सी नज़र हम महकमा एक्साइज की अलिया कम्प्लेक्स में जो इस महकमा एक्साइज की जो दफ्तर है उसकी सफाई सुथराई पर, अगर मेरा कैमरा मेरे साथ आए तो हम यहाँ से आपको दिखाते चलते हैं कि ये पुराना रिकॉर्ड जो है वो इन अलमारी में रखा गया है। इन अलमारी की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि जो है बिल्कुल यहाँ पे ओपन है और तमाम जो पुरानी फाइल, जो कागजात हैं, गंदगी आप देख सकते हैं कि कोने कोने पर जो है वो पान और सिगरेट्स जो हैं वो फेंके गए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखें बिल्कुल जो तमाम कागजात हैं वो रद्दी का ढेर बन चुके हैं।
यहाँ पर जो है बिल्कुल भी मेंटेनेंस जो है वो नहीं की जा रही, तमाम डॉक्यूमेंट्स की, तमाम रिकॉर्ड की। अगर इन फ्यूचर अगर इसको अगर महकमा एक्साइज डिजिटलाइजेशन की तरफ जाता है तो उसमें पुराने कागजात की जांच पड़ताल में इनको मुश्किलात का सामना आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई देखभाल नहीं की जाती। बिल्कुल यहाँ पे पान के थूक के निशान जो हैं वो देखे जा सकते हैं, सफाई का कोई इंतजाम जो है वो नहीं किया गया। नाज़रीन, ये तमाम मनाजिर जो है वो महकमा एक्साइज की बिल्डिंग की हैं। तमाम जो गंदगी, सफाई सुथराई बिल्कुल जो है वो यहाँ पे नहीं की, गंदगी के ढेर जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। बहरहाल ये महकमा एक्साइज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जहाँ शहरी परेशान है वहाँ पर बिल्डिंग में भी जो है जो उनके सफाई सुथराई है वो बिल्कुल नहीं की जा रही। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मोहम्मद अजीम मलिक। उनसे जानते हैं शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, क्या इस्लाहत की हैं। नंबर प्लेट की सूरत में भी मुश्किलात का सामना है, ई कार्ड की सूरत में भी जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्या इस्लाहत की इन्होंने और इनकी बुनियादी वजूहात क्या है? क्योंकि नंबर प्लेट जो है वो इशू जो है नहीं की जा रही, उनमें ताखीर है और सड़कों पर जो है वो लोगों के चालान हो रहे हैं। जी मोहम्मद अजीम साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? गजल खान साहब, आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ लेकर आए हैं। जो एम्बेडेड कार्ड्स जो हमारे हैं वो अब फ्लो में आ चुकी हैं और जो क्लाइंट्स जो हमारे हैं जो रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर के लिए आते हैं उनको 5-6 डेज में उनको वो कार्ड डिलीवर हो रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो नंबर प्लेट्स हैं वो भी फ्लो में आ रही हैं, बल्कि उसमें बहुत बेहतरी हुई है। पहले तो प्लेट्स का काफी डिले आवाम को उठाना पड़ता था, लेकिन अब जो हमारा जो है ना ये नंबर प्लेट्स का सेक्शन भी एक्टिव हो गया और पब्लिक को ये जो प्लेट्स ना वो भी मिलना शुरू होगी। अजीम साहब, ये यूनिवर्सल लेवल जो नंबर, यूनिवर्सल नंबर है, आप उसकी शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो पिछले नंबर हैं वो तो कई कई महीने बल्कि कई कई साल आप कह सकते हैं कि वो उन लोगों को नहीं मिली और वो गोदाम में पड़ी हुई, उनको जंग लग रहा है। और एक बीच में जो थर्ड पार्टी है उसके भी थोड़ा बताएं कि क्या इश्यूज हैं। अब हमारे महकमे ने बॉक्सेस भी रख दिए मुख्तलिफ पोश जगहों पे, मेन बाजारों में और मुख्तलिफ जगहों पे ना वो रख दिए हैं। अगर कोई शहरी वो अपनी पुरानी प्लेट्स भी बनाना चाहता है, अगर उसकी फीस जमा हुई है, वो अपना नेम, व्हीकल का नंबर और सारा वो अपना वो उसमें फॉर्म फिल करके उस बॉक्स में डालेगा और वो भी उस शहरी को जिसने फीस जमा कराई हुई है वो उसको डिलीवर होगी। यूनिवर्सल नंबर प्लेट जो हैं कुछ 15 दिन 20 दिन में बाद मिल रही हैं अगर आपके बकौल, लेकिन शहरियों का फिर भी एतराज है इस पे। लेकिन अगर पुराने बात की जाए, नंबर प्लेट जो जिन्होंने पुरानी फीसेस दी हुई थी जो गोदाम में आपके कोटलखपत के इलाके में वो गोदाम में पड़ी हुई हैं, उसमें जंग लग रहा है, वो इश्यूज क्यों नहीं हुए? कई महीने हो चुके हैं। नहीं, वो उधर पड़ी नहीं हुई हैं। वो हम यही अवाम को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर कोई शहरी पुरानी प्लेट्स बनवाना चाहता है वो हमें इंटीमेट करेगा बंदा, और वो फिर हम जो टाउनशिप में जो हमारा ये प्लांट है हम उनको वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और उनको पुरानी प्लेट भी मिल जाएगी अगर फीस जमा हुई है उसकी। अगर उसने फीस जमा की है तो उसी फीस पे मिलेगी या फीस दोबारा? उसी फीस पे मिलेगी, ऑलरेडी अगर पेड हुई है। ये जो थर्ड पार्टी है जिसमें कार्ड जो है वो गवर्नमेंट क्योंकि नहीं बना रही, उसका मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इवन के नंबर प्लेट्स का जो मटेरियल है वो भी इंपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट यहाँ से खुद प्रोवाइड नहीं कर रही, मतलब उसको खुद नहीं बना रही, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें कोई डिले आप देखते हैं बीच में कोई ऐसा सेक्शन है? नहीं, एम्बेडेड कार्ड में कोई डिले नहीं अब हो रहा, वो फ्लो में, हमारे फ्लो में नहीं कोई उसमें नहीं कोई डिले नहीं है उसमें। कोविड की वजह से? हाँ, कोविड की वजह से पीछे थोड़ा सा मसला, अब कोई नहीं है। अब हमारे एम्बेडेड कार्ड फ्लो में है। ये मैनुअल था ना ट्रांसफर वाला, ये कि बेचने वाला कहता था ये मालिक के साइन है, मालिक कहता था ये मेरे साइन नहीं है। और आवाम इस झंझट से भी अब आजाद हो जाएगी, क्योंकि बायोमेट्रिक में बेचने वाले की भी थंब इम्प्रेशन आएगा और खरीदने वाला का भी थंब इम्प्रेशन आएगा, और अवाम को ये सहूलत अब हो जाएगी, मिल जाएगी कि इस रोले में अब अवाम नहीं पड़ेगी कि ये मेरा साइन नहीं है, ये उसके साइन नहीं है, डिस्प्यूटेड केस नहीं होगी इन फ्यूचर में। हमारा नादरा से भी नेगोशिएशन सारा चल रहा है और अनकरीब इस पे वर्किंग
तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है और अनकरीब ये लॉन्च हो जाएगा जी बायोमेट्रिक सिस्टम। पंजाब गवर्नमेंट जो है हमारी वो वाम की सहूलत के लिए ये फैसिलिटेशन सेंटर वो भी कायम कर रही है। कह रहे हैं कि जो साइन किए जाते हैं सेलर और परचेजर जो है उनके साइन जो है वो थंब इम्प्रेशन पे आ जाएंगे, और ये जो हम फाइलों में लगाते हैं इसका अंदराज वगैरह के बारे में बताएं। ये जो पहला जो सिस्टम जो हमारा चल रहा है ना, उसमें कई बार मालिक का और बेचने वाले का डिस्प्यूट हो जाता था। खरीदने वाला कहता था ये मेरे साइन नहीं है, ये बेचने वाला कहता था ये तो मेरे साइन नहीं है। हाँ वो कहते थे कि ये मेरे साइन नहीं है, वो यही डिस्प्यूट चलता रहता, कई केसेस में आ जाता था। तो वो ये अब आवाम बायोमेट्रिक के लॉन्च होने से इस जंजर से भी आजाद हो जाएगी, क्योंकि दोनों के थंब इम्प्रेशन आ जाने हैं, बेचने वाले की भी और खरीदने वाले की भी। अब हम समझें आपकी इन बातों से कि अनकरीब का मतलब अगले साल कह सकते हैं आप, कि अगर अनकरीब अगले साल या इस साल के एंड पे अगर ये होता है तो अवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा। नाजरीन, आपने महकमा एक्साइज के हुकाम और शहरियों की बातें सुनी। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ठोस इक़दाम करते हुए महकमा एक्साइज में शहरियों के लिए आसानी पैदा करे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान गजनफर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।